এই সাহিত্য উৎসৱৰ লগত জড়িত বিশিষ্ট লোকসকল, সাহিত্য উৎসৱৰ অনুৰাগীসকল, আজি পুৱাই মোৰ কোকৰাঝাৰলৈ অহাৰ সৌভাগ্য হৈছে এইখন সাহিত্য উৎসৱ চোৱাৰ আৰু তাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ অভিজ্ঞতা হৈছে। আৰু আৰম্ভণিতেই কবিতা পাঠৰ এটা অনুষ্ঠানত মই আছিলোঁ আৰু তাত যিবোৰ হৃতপ্ৰায় ভাষা আছে, লুপ্তপ্ৰায় ভাষা আছে, সেইবোৰৰ কবিসকলক লৈ কোকৰাঝাৰৰ সাহিত্য উৎসৱে যি এটা নতুন বাট কাটি দিছে, তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰাৰ, এই ভাষাবোৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি এটা উদ্যোগ লৈছে আৰু যি পৰিপাটিৰে এই অনুষ্ঠানটো সম্পন্ন কৰা হৈছে, মই অত্যন্ত আনন্দিত, আহ্লাদিত হৈছোঁ। আৰু মই এইটো কথা নিৰ্বিঘ্নে ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ যে জয়পুৰৰ যিটো সাহিত্য উৎসৱ আছে, সেই সাহিত্য উৎসৱতো এই ধৰণৰ চিন্তাৰে, যি চিন্তাই আমাৰ দেশখনক, আমাৰ ৰাজ্যখনক মানসিক চিন্তাৰ উন্নতিৰ বাটলৈ লৈ যাব পাৰে আৰু সকলো মানুহকে সামৰি এখন নতুন অসম, এখন নতুন ভাৰতৰ সপোন দিব পাৰে, এখন নতুন বড়োভূমিৰ সপোন দিব পাৰে, তেনেকুৱা শক্তি সামৰ্থ্য আজি এই সাহিত্য উৎসৱে কৰি দেখুৱাইছে। গতিকে অসমৰ এজন সাধাৰণ লোক হিচাপে মই এই সাহিত্য উৎসৱলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ, ওলগ জনাইছোঁ। মই আজি এই সাহিত্য উৎসৱতে যেতিয়া কবিতাৰ পাঠ হয়, তেতিয়া মই কবিতা এটা লিখি আনিছিলোঁ এই অনুষ্ঠানটোক লৈ, এই সাহিত্য উৎসৱক লৈ। এই সাহিত্য উৎসৱ দৰাচলতে আমাৰ বাবে আজি এই গৌৰাং নৈৰ পাৰত যি বড়ো সভ্যতাই ঠন ধৰি উঠিছিল ক্ৰমান্বয়ে আৰু এতিয়াও উঠি আছে, এইখিনি সময়ৰ এখন সাৰ্থক ছবি, এইখন ইতিহাস, এইখন আমাৰ যি সাহিত্য উৎসৱ হৈছে, সেই সাহিত্য উৎসৱে উদঙাই দিছে, তাকে প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে তাকে লৈ মই কবিতা এটা লিখিছিলোঁ আৰু সেই কবিতাটোৰ মই গাই দিব খুজিছোঁ। ইয়াতে যিসকল আছে, মই এটা তাতে বিট এটা দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। 1 2 1 2 এটা দিয়কচোন। 2 1 2 1 2। মই গৌৰাং নৈৰ মমিংবোৰ শুনিছোঁ, মই গৌৰাং নৈৰ ৰিংবোৰ শুনিছোঁ, তাত চিফুঙৰ আমেজ ৰিণি নিনি পাইছোঁ, চেৰাজৰ সৰুবোৰ বুকুত সোমাইছোঁ, বাগৰুম্বাৰ তালত নিজে মচি গৈছোঁ, আৰনাইখনত জীৱনকে দেখিছোঁ, বড়ো ভূমিত এই প্ৰাচীন সভ্যতাৰ মুখামুখি হৈছোঁ। ৰিংবোৰে উজাই, লুইতেৰে ৰিংবোৰে উজাই শদিয়ালে যোৱা দেখিছোঁ, আৰু ভটিয়াই গংগা যমুনা কৃষ্ণা কাবেৰীৰ ভেট পোৱা দেখিছোঁ। এই ঐতিহ্যক আজি প্ৰণিপাত কৰিছোঁ, এই ঐতিহ্যক আজি প্ৰণিপাত কৰিছোঁ। ৰিঙতেই এই পুণ্যভূমিক জীৱন্ত দেখিছোঁ, বড়ো ভাষাৰ শক্তিক আজি বৈ পৰা দেখিছোঁ, সূৰ্যদীপ্ত উত্তৰণৰ উচ্ছ্বাসো দেখিছোঁ, প্ৰৌঢ়ত্বৰ আশ্বাসো পাইছোঁ। এই সভ্যতাক মই প্ৰণিপাত কৰিছোঁ। দূষিত প্ৰদূষিত এক জীৱাণুৱে আনিছিল বিষাদ, বাটবোৰ আছিল মাথোন অৱসাদ, শব্দবোৰেও হেৰুৱাইছিল আজি সোৱাদ। এই ৰিংবোৰ শুনি আজি শব্দ জীপাল হ'ল, ক্লান্তি পাহৰি গ'ল, উদ্দীপ্ত সিহঁতে পাখি মেলি উৰি গ'ল, সেই শব্দেৰে সভাগৰো উখল মাখল হ'ল। এই ৰিং, এই শব্দতে তৰুণ বৃদ্ধ এজাৰ বেজাৰ সকলো মিলি গ'ল। দুখ অসুখ প্ৰেম ভাল পোৱা
একাকাৰ হৈ গ'ল। সভা ঘৰতে আছিল উশাহ এজাক, হৃৎপিণ্ডৰ যেন পৰিপাতি থাক থাক। সেই বুকু কলিজাতে ভাল পোৱাবোৰ আজি শ্ৰুতস্বিনী হ'ল। শেৱালিৰ দৰে সুবাসিত জীৱনক এক উৎসৱ ৰূপে সাৱটি আদৰা হ'ল। এই উৎসৱেই মানুহ মানুহ হোৱাৰ পোহৰৰ দৰে হ'ল। সম্পৰ্কৰ শেৱালি সুবাস হ'ল। শান্তি সমন্বয় জীৱন্ত ছবি হ'ল। এই প্ৰাপ্তিয়ে আজি যুগমীয়া হওক, এই ইচ্ছাৰে আজি জীৱন উপচি গ'ল। এই ইচ্ছাৰে আজি জীৱন উপচি গ'ল। আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহি আজি এই সাহিত্য উৎসৱত ভাগ লৈ এই বৰভূমিৰ সভ্যতাৰ যিটো ইয়াৰ শক্তিশালী ৰূপ, ইয়াৰ আৰু শক্তিশালী ৰূপ, সেইটোক দেখা পায়। আৰু আপোনালোকৰ এই বৰভূমিৰ এই নতুন ৰূপ দেখা পায়। আৰু এই সাহিত্য উৎসৱত যি চিন্তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে, গোটেইখন ভাৰতক এক কৰাৰ, অসমক এক কৰাৰ যি প্ৰতিফলন ঘটিছে, শান্তি সমন্বয়ৰ যি ছবি আপোনালোকে আঁকিছে, তালৈ আকৌ এবাৰ অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ। Thank you, Professor Amar Jyoti Chaudhary sir, for your stimulating speech and recitation. Now I would like to invite Honorable Chief of BTR, Sri Pramod Boro sir, to take his chair, and I also request our members of the organizing committee to felicitate him. Thank you, sir. On the dais, we have Honorable Cabinet Minister of Assam, Sri U.G. Brahmo sir. I request our members of the organizing committee to felicitate him. Thank you, sir. Amateurs, we have Mitesh Nirmohiji, who has been representing Rajasthani language since the inception of our second Kokrajhar Literary Festival. I request our members of the organizing committee to felicitate him. Now, I request our member of the organizing committee to felicitate Professor Abdul Ali from Aligarh Muslim University. Thank you, sir, for being with us. Now, I would like to request our Honorable Speaker of Assam Legislative Assembly, Sri Jyot Biswajit Deimari, sir, to deliver his speech. Honorable Chairperson, Professor Anil Boro, Honorable CM of Bodoland Territorial Region, Sri Pramod Boroji, Honorable Professor Arun Jyoti Chaudhary, former Vice Chancellor of Guwahati University, Professor Abdul
Alimji from Aligarh Muslim University, Sri Mutesh Nirmakhi ji, Nimai ji, Sahitya Academy ARD, Honorable Minister of Government of Assam, Sri U.G. Brahmoji, Principal Secretary Sri Anurag Goyal ji, Honorable Executive Member of Badarin Territorial Council, Sri Revan Arji Hari, आरो बेवहायनो नुजाथिनो हानाय जोंनि बयबो सानसुमै लोगोसे थुनलाइगिरि नोंथांमोन जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि गासै लाइमोन थुनलाइगिरिजों लोगोसे गागि थुनलाइगिरि आरो रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो मिजिं थिदों जे जोंनि जिउआ बे बोसोराव बयनाबो रंजा खुसिनि गेजेरजों सम बारलांगोन जों बयनिबो थाखाय बियो देरगाथाव बाथ्रा जे दिनै क'क्राझाराव नैथि खेबनि थाखाय थुनलाइयारि बा थुनलाइ फोरबो लिटारेरि फेस्टिवल बेवहाय खुंफुंनो हादों आरो बे थुनलाइ फोरबोआव दिनै आसामनिल' नङा भारतनि आरो लोगोसे बायरा हादोरनिबो जोंनि थुनलाइगिरिफ्रा बेयाव नुजाफैनानै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बायदिसिना थुनलाइ सावरायनायजों लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय बेफोरनि गेजेरजों बेवहाय बाहागो लानाय गासै जोंनि थुनलाइगिरियानो थुनलाइनि सायाव गोबां गोदान गियान सोलोंनानै लानो खाबु मोनदों जोङो बयबो मोनथिगौ थुनलाइहा धोरोम गैया थुनलाइहा खुनु हारि गैया थुनलाइयाव थानाय गासै जि बाथ्राफोर बियो जारिमिनानो जा बियो सल'आनो जा बे सल'मायानो जा बियो जार्नेलानो जा बा खन्थाइयानो जा जोंहा बेवहाय बबेबा धोरोमनि एबा बबेबा हारिनि होननानै माब्लाबाबो साननाय फैया बेखौ जोङो थुनलाइ हिसाबै बिनि बिदैखौ बयबो समानै सोबनो हायो दिनैनि बे मुगायाव बे थुनलाइ फोरबोनि गेजेरजों जोङो गुबुनफोरनि सानस्रि आरो गुबुनफोरनि हारिमु आरो बिसोरनि थुनलाइयारि बिथिंनि सायाव बायदिसिना जि थुनलाइनि सोरजि बिनि सोमोन्दै जायफोर थुनलाइगिरिफ्रा बायह्रानिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैदों बिसोरजों सावरायलायनानै जों गोबां बाथ्राखौ मोनथिनायनि खाबुखौ मोनदों आरो बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि थुनलाइनि फारसे गोसो थानाय आरो थुनलाइ सोरजिनो गोसो जानाय सुबुंफ्रा आरो साबसिननिफ्राय साबसिन साननो हादों जे गावनि जिउआव बबे बिथिंनि थुनलाइखौ गोसो होनानै सोरजिलांनो आरो इयुन जोलैफोरनो अराय सम मोनथिसार होनायजों लोगोसे जुगामि हिसाबै बे थुनलाइखौ गायसनलांनो ये हमारे लिए सौभाग्य के बात है कि यहाँ की जो साहित्य पर्व मना रहा है यहाँ सिर्फ आसाम के नहीं ही भारत और बाहर से भी बहुत साहित्यिक आके पार्टिसिपेट किया है और उसके जरिए यहाँ के जितना भी साहित्यिक है और जितना भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं सभी ने भी साहित्य के बारे में उन लोगों से इंटरेक्शन करते हुए बहुत सारे साहित्य के बारे में नॉलेज मिलने का एक मौका मिला है और उसके जरिए साहित्य के बारे में जिन बातों को
हम लोग सोच नहीं सकते थे, उसको भी हमें जानने का मौका मिला, समझने का सक्षम हुआ। और इसके जरिए आने वाले दिन में जितने भी हमारे नए पीढ़ी हैं, यंग जनरेशन हैं, वो ये लोग जीवन में अपने जो साहित्य सृष्टि के बारे में सोच रहे हैं वहाँ पर और अच्छी तरह से बेहतरीन तरीका से इसको सृष्टि करने के लिए कुछ ना कुछ अंदाजा मिला है, आइडिया मिला है, और जिनसे वो भविष्य के लिए भी अच्छे एक साहित्य सृष्टि करके दे सकेगा। और ये पर्व इसलिए हमारे लिए लाभदायक है। साहित्य में कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है, कोई सीमा नहीं रहता है, साहित्य साहित्य ही होता है। और इन सभी साहित्यों को हम जब अध्ययन करता है, पढ़ते हैं, तो हमें कभी याद नहीं होता है कि ये किस धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, किस समाज के साथ जुड़े हुए हैं। ये ही एक साहित्य का महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं आशा रखता हूँ कि इसके जरिए हमारे बोडोलैंड के जितना भी नए पीढ़ी के साहित्यिक हैं, वो लोग साहित्य के क्षेत्रों में आगे बढ़ जाने के लिए उत्साहित होगा और बहुत सारे बातें इसके जरिए जानने के लिए मौका मिलेगा। जों बिनि गेजेरजों जों गावखौनो सासे थुनलाइगिरि हिसाबै गायसननो थाखाय बोलो फोरानो हागोन। मैयानिफ्राय खन्थाइ आवरायनाय बायदिसिना जाबोदों, गतिके बेफोरनि गेजेरजोंबो गावबा गावनि जि रोंगौथि आरो जि सोरजिनाय बिनि सायाव मोनसे आन्दाज खालामनो हादों, अनुमान खालामनो हादों जे बे खन्थाइया बिसिबां गोजौ थाखोनि जादों आरो बेखौ बिसिबां थुनलाइगिरिफ्रा बिजिरनानै माबायदि कमेन्ट्स होदों आरो बे कमेन्ट्सनि गेजेरजों गावखौनो गाव आरोबाव साबसिन सुद्रायनानै लानायनि सानस्रिखौ मोनदांनो हादों आरो इयुनाव जाहाथे आरो बिनिख्रुइ साबसिन सोरजिनो हायो बेखौ थारैनो साननो हादों। आंथ' लिरगिरि नङा, थेवबो स्कुलाव फरायबा जोंहा स्कुलाव मेगाजिन थायोमोन, बेवहाय लिरोमोन। नाथाय बिनि उनाव सोमावसारनायनि गेजेरजों फैनायाव बेफोर गासिबो जिथु लिरनायनि हुदा बियो गैया जालांबाय। गोबाङानो बुङोमोन नोंबो लिर नोंबो लिर। गतिके दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाबा मोनफा मोननै लिरदों, मालाबा बर' थुनलाइ आफादनियाव मोनफा मोननै आंबो गोसोआव गैला दा मा लिरखो बेबायदि। दा आं साबायखर बावदों जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ जे बिथाङा बड'लेण्डनि CM जानाय लोगो लोगो बेफोर गासै बिथिंखौ जायजों जों गावखौ फोसावनो हायो, जोंनि थुनलाइखौ बायहेरायाव फोसावनो हायो, जोंनि थुनलाइनि गेजेरजों जोंखौ मिथिनो हायो, बिनि थाखाय बे थुनलाइ फोरबोखौ माने बेवहाय खुंनायनि जि राहाखौ लादों बड'लेण्ड खुंथाइनिफ्राय आरो बिनि थाखाय आं साबायखर बावदों गासै EMफोरखौबो, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मानव गेदेर इउजि ब्रह्म बिथाङा सासे साहित्यिक थुनलाइगिरिबो जोंखौबो दैदेनबोदों। तो बिथांनि सुबुरुन, बिथांनि आइडिया बेफोरबो बेवहाय दंदेरो आरो जायजों जों दिनै बयजोंबो बाख्नायजानाय रोखोमनि बे हाबाफारिखौ बेवहाय मावफुंनो हादों। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों। बोरो साहित्य के बारे में बहुत को पता नहीं था क्योंकि बोरो भाषा नहीं समझता था, लेकिन बोरो भारत के जो प्राचीन भाषाई है उनमें से एक है। बोरो बहुत प्राचीन भाषा है। हमारे एक जापानीज ने रिसर्च किया था तो उन्होंने घोषणा किया 2000 साल पहले ईस्टर्न नेपाल, वेस्ट बंगाल से लेके अभी के ये आसाम, बांग्लादेश की सीतागोंग हिल्स ट्रेक तक, मतलब सिर्फ एक ही भाषा थे 2000 साल पहले, और ये थे बोडो भाषा। ये एक जापानीज ने इसको रिसर्च करके घोषणा किया है। और हम सब भी पता है कि बोडो भाषा कब कहाँ से आया इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि ये भाषा आगे से ही है, किसी से भी बहकर ये नया भाषा के रूप नहीं हुआ है। तो इस भाषा ऐसे एक अनुष्ठान के जरिए दूसरों को जानने का एक मौका देगा और बोडो भाषा से जितना भी यहाँ पर साहित्य सृष्टि हुआ है, इस साहित्य को भी दूसरों ने अध्ययन करने के लिए एक मौका
मिल सकता है और इसके द्वारा हम एक दूसरे को जान सकता है तो बेबायदि जोंनि गेजेराव मोनथिलायनो हागोन दा सम गैया आंहाबो थांफिननांगौ आं स्कुलाव थाबानो लिरनाय खन्थाइ आंनाव दिनै बेवहाय मैयानिफ्रायनो खन्थाइ आवरायलायदों होनबाय थानायखौ गोसोआव फैदों खन्थाइथ' जाया आरो बे समनि बे जुगनि खन्थाइ 1986-87 नि खन्थाइ आरो स्कुल फरायबा स्कुल मेगाजिनाव लिरनाय खिन्थु गोदो आंनाव उन्दैयाव मोनसे गुन दंमोन आं जेखौनो मावो मखस्थ' थायोमोन ओंखायनो बेबो मखस्थ' दंखाय आं आवरायनानै फोजोबनो सानदों आंबो नोंसिनि सिगाङाव गावखौनो बारा खम खालामनानै लायोबा गाज्रि जागोन दा आं मोनसे मा होनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे समाव क्लास 8आवमोन जे मोनसे मा होनो खन्थाइ लिरनाय स्पट राइटिं कम्पिटिसन माने जायगायावनो खन्थाइखौ लिरनांगौ आरो बेवहाय आङो 3rd प्राइज मोनदोंमोन आरो बे खन्थाइखौ लिरनानै आरो 3rd प्राइज खन्थाइया मामोन एसे एनै र' गोसोआव फैजोबदों दा आं बेखौ आवरायना होनो सानबाय खन्थाइयाथ' बे सारिनि खन्थाइ नङा स्कुल समाव उन्दै समाव लिरनाय सैनाय जनानै जेब्ला नों उसुङाव लुनानै जनानै जेब्ला नों इसानाव लुनानै होनाय आं उसुङाव जेब्ला नों जि दायो मिथिंगानि आगर एरो अब्ला लुबैनो नों आंखौ नोंनि खाथियाव थानायखौ नों जोंनिफ्राय गलांब्ला आइ आफाया लायफिनब्ला जों सानैजों हाबा जाब्ला फुजिगोननो नों आंखौ जेरैहाय बिसिया फिसायखौ बे समनि सिमां रुवाथि आरो मिथिबाय जेब्ला आं हारिनि दैदेनगिरि बबेबा आफादनि आफादगिरि थाङोब्ला आं आफादसालियाव लानानै माफ्ला नोंनि मा होनो रैरुप लानानै माफ्ला नोंनि रैरुप आगरखौ गोजोनगोनने सुबुंफ्रा नुनानै एसे उल्था फाल्था जादों आं एसे बावबाय जेब्ला आं हारिनि दैदेनगिरि बबेबा आफादनि आफादगिरि थाङोब्ला आं आफादसालियाव लानानै माफ्ला गोदोनायाव दानानै होनाय गोजोनगोननि सुबुंफ्रा नुनानै आंखौ गोदोनायाव लानाय नोंनि रैरुप माफ्लाखौ बे समाव आर'नाइखौ बारा बुङामोन माफ्ला होनोमोन आरोखि दा आर'नाइ जाबाय आर'नाइखौ हाबाब सना मिजिं आंनि नोंखौ लानानै थिहोबाय नों जोंहानि रुवाथि जानानै बेवनायनो 3rd प्राइज मोनदोंमोन आरो आं बे खन्थाइयाव मोनसे बेनि उनाव आरो मोनसे लिरदोंमोन आं मास्टार खाथिदोंमोन होनब्ला मेट्रिक पास जाखांनानै हायार सेकेन्डारि पास जानानै हिन्दी मास्टार सखिदारनि अबस्थाखौ नुनानै आंनाव मोनसे स्कुलाव खन्थाइ सोमजिदोंमोन बेखौ लिरदोंमोन आं थाखोआव नेहात नुनायाव नेहात जेरावबो नेहात आंनि बे साख्रि सौखिदारा हिन्जाव नायब्ला खामफ्लाय होजाया दालालजों सिन्थाय नायफिनजाया सिख्लाफोरजोंथ' मोखां जाजाया सौखिदार आं साख्रि मावनायखाय नाथाय मिथिखालैफोर बयबो आंखौ आं नङाब्ला जेबो जाया फांनो खेवनो अफिसखौ हाया बुयोब्ला आं थं थं बेलखौ खारलांगोन गथ'फ्रा गारनानै स्कुलखौ जोब्बाय आरो दा बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों आंनि बिबुंथि बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों Thank you, sir. We are very thankful to our honorable chief guest of today's valedictory session, our honorable Speaker of Assam Legislative Assembly, Srijut Bishwajit Debmari ji. And now, we are very happy, the organizing committee of 2nd Kokrajhar Lead Fest 2023 is very happy to announce that we have amidst us Sri Vedant Bhardwaj. He'll be performing before you a Sufi Geet. He is a multifaceted, multi-genre musician who has come here in BTR to spread the message of the love of humanity through his divine songs. And he specializes in singing and playing the songs of saint poets from the Bhakti and Sufi traditions at music festivals in India and across the world. He has formally learned Carnatic, Hindustani, and Western classical music, and is currently a disciple of Maestro
Ramamurthy Rao. In addition to composing music for dance, theater, productions, award-winning feature films, advertisements, documentaries, and music albums, Vedant is co-director of Nalanda Vase Chennai Children Choir, featuring young talent from economically disadvantaged backgrounds, which represented India at the 2018 Serenade Choral Festival at the Kennedy Center in Washington, D.C. So Vedanta ji is here with us to share hope, love, and peace in our world through his music. Please, Vedanta ji, we welcome you. And before presenting his beautiful song, we would like to felicitate him with our traditional Aronai. So I request our organizing committee to felicitate him with our traditional Aronai. खुलुम भाई सभी को नमस्कार I'm very happy to be invited at the Kokrajhar Literature Festival. Thank you Shri Pramod ji, Niluptal to have this. I feel very honored to be among such an amazing dais of great people and a lovely audience. And what I really like is that there are so many students, so many young people here, and the future lies in your hands. I really like the whole concept of Bodoland territory. You follow the three main concepts of smart, green, and peace. So I would like to sing a song which is attributed to green, to trees. This is a song written by Surdas, a saint poet from the 16th century. Here he says, let's learn compassion, love from trees. A tree just keeps giving everything that it has, all through its life. It gives you fruit, it gives you shade,
it asks for nothing in return, nothing that we can make. All it needs is sunlight, water, and earth. None of them are made by us. And then he says that if you water a tree, it's not going to love you more. And a tree is not going to hate you if you cut it. So let's learn this way of giving, this way of compassion, selflessness from trees. And he says that if you throw a stone at the tree, you get a fruit. If you stand under a tree, you get shade. And the human body, the humans, we human beings are blessed to be living in a world where there are trees. So let's learn from them. But if you cannot learn this lesson from trees, at least learn from indigenous people. People who are one with the nature and who know how to live with the nature. So let's learn at least from them. So this is the song. There must be about 1,000 people in the audience and about 10 of us on stage. And I'm the only one here who's singing just one instrument. I seek your support by your beautiful hands, by just clapping in rhythm. Thank you. Lovely. वृक्षन से मति ले मन तू, वृक्षन से मति ले, वृक्षन से मति ले मन तू, वृक्षन से मति ले, मन तू वृक्षन से मति ले, वृक्षन से मति ले, मन तू वृक्षन से मति ले, मन तू वृक्षन से मति ले। Lovely. सहत अपने सिर ऊपर, धूप सहत अपने सिर ऊपर, और को छाह करे, धूप सहत अपने सिर ऊपर, और को छाह करे, जो वाही को पत्थर चलावे, जो वाही को पत्थर चलावे, ता
वृक्षन से मति ले, वृक्षन से मति ले, मन तू वृक्षन से मति ले, मन तू वृक्षन से मति ले। धन्य धन्य ये परोपकारी, धन्य धन्य ये परोपकारी, वृथा मनुज की देह। धन्य धन्य ये परोपकारी, वृथा मनुज की देह। सूरदास प्रभु कहे लगी बरनो, सूरदास प्रभु कहे लगी बरनो, हरिजन की मति ले। सूरदास प्रभु कहे लगी बरनो, हरिजन की मति ले, मन तू वृक्षन से मति ले, वृक्षन से मति ले, मन तू वृक्षन से मति ले। काटे वाको क्रोध न करही, काटे वाको क्रोध न करही, सींचत न करही नेह। काटे वाको क्रोध न करही, सींचत न करही नेह। मन तो वृक्षन से मति ले, वृक्षन से मति ले, वृक्षन से मति ले। Very, we are very thankful to Vedantji for your beautiful performance. And yeah, we are waiting for one more Sufi Geet from you again. Thank you for that support by clapping. I feel like clapping for all of you. Thank you.
I know that music, culture, dance is a very, very rich tradition. The land that I'm singing in is seeped with tradition, with culture. I'm very, very blessed to be here and to have all of you as audience. This is a song written by Kabir. Kabir was a 16th century saint poet. He never wrote his songs because he did not know how to read and write. He just said them out. And his songs were passed down through oral tradition. And that is what makes Kabir even more mysterious, because we don't know if the songs that we are actually singing is written by Kabir. There is no documented proof. In this song, he says that there are many distractions in our life. Right now, the biggest distraction is our phones, our computers. It keeps us away from our destiny. It keeps us away from our destiny path if it is not used properly. It has amazing uses, but everything has a good and a bad. So, in this he says that let's not be deviated, let's not forget our destiny path, because everybody who is born is going to die. So let's not wait till the end to do what we have to do now. So if you have an idea and if you have a plan, act upon it and do it right now, is what Kabir says. In this song, my guru Sri Ramurthy Rao, he taught it to me in Rag Jog, a Hindustani classical rag. I was very inspired. When I learned to play the guitar, I started learning to play the blues. So I thought to combine the blues and this Kabir bhajan together. And I hope you all like it. बयबो आखाइ खबनानै हो बिथांनि थाखाय बयबो भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी भैया खर्चत नहीं गठरी। संतत संपत सुख के कारण, संतत संपत सुख के कारण, जासो भूल परी भैया जासो भूल परी। So he says that you
may be sitting in jap, tap, sadhan, but it's of no use. All your santat, all your wealth, your fortune, your fame is of no use because you're forgetting what you have to do. You're forgetting your destiny. भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। राम नाम को सुमिरन कर ले, राम नाम को सुमिरन कर ले, सिर पे मौत खड़ी भैया, सिर पे मौत खड़ी। कहत कबीरा 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 कहत कबीरा राम न जामुख, कहत कबीरा राम न जामुख, तामुख धूल परी भैया, तामुख धूल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि हरि, भजो रे भैया राम गोविंद, राम गोविंद, राम गोविंद हरि हरि। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गजंथो भारद्वाज जी, आपको हार्दिक दिल से धन्यवाद। Yes, nothing is more divine than love. Love is God and God is love. And music has no language. What a beautiful fusion of Kabir Doha and guitar. And we got really mesmerized with the Sufi Geet that you have performed just now. And now I'd like to request our Honorable Minister, Government of Assam, Sri Jut UG Brahma Sir, to please come and address the House. Please, sir. Professor Onil Boro, Chairperson, Honorable Chief Executive Member, Portland Territorial Council, यहाँ
उपस्थित हमारा साथी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अब्दुल अलीम, प्रोफेसर अब्दुल अलीम, और राजस्थान से साहित्यकार हमारा साथी मिठेश निर्मोही जी, रेवरेवान अज्जहरी, ऑनरेबल EM वुडलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, और थोड़ी देर पहले भाषण रख के चले गई हमारे असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देमारी, यहाँ उपस्थित भिन्न भिन्न राज्य से आए हुए साहित्यकार, कवि और लेखक और हमारे साथीगण, और उपस्थित हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार। और आज मेरी तरफ से बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर हूँ। तो हमारा क्या था कि शुरुआत से ही हम लोग इसको देख रहा था कि ये समारोह ठीक तरह से समापन हो जाए, सफल हो जाए। तो आज की जो समापन समारोह में आके मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो उद्देश्य था ये सही मायने में सफल हुआ है, क्योंकि आज प्रोफेसर अब्दुल अलीम जी भी है, मिठेश निर्मोही जी भी हैं, असम विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और आप लोग सारे हैं। 3 दिन की आप लोगों का जो अभिज्ञता होगा, एक्सपीरियंस होगा, कैसा रहा होगा, ये आप बताएंगे बाद में। और पिछले साल के जो एक्सपीरियंस है और इस साल के एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क रहा, इसको देख के हम अगले साल में जो होने वाला है और बेहतर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो एक मिरर की तरह है, हमको दुनिया देखने का मौका, सारे भारत को देखने का मौका, और आप लोगों के लिए जो लोग आया है भारत के हर कोने से, तो आप लोगों के लिए इस एरिया को, इस क्षेत्र को जानने का एक मौका है। शायद हम लोगों ने साहित्य के जरिए इसको किया है। भारत के कौन कौन राज्य में कौन कौन भाषा चलता है, कौन कौन किस तरह का साहित्य चर्चा में होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हमको मिला। आज एक सुबह के सेशन में एक रिटन लैंग्वेज के बारे में एक सेशन था, मुझे भी होना था, मुझे आ नहीं पाया मेरे कुछ काम की वजह से। मैं सुना कि इसमें बहुत विस्तार से बात हुआ कि जैसे कि भाषा को 2 कैटेगरी में रख के हम लोग बातचीत किया होगा। मैंने सुना कि एक विकसित भाषा है जिसका कोई समस्या नहीं, डोमिनेंट लैंग्वेज है, भारत की भाषा है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, और भारत में ज़्यादातर लोगों से कहे जाने वाली भाषा है, लिखे जाने वाली भाषा है। और दूसरी कैटेगरी है कि कम संख्यक लोगों के द्वारा इसको कहा जाता है, लिखा जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिटन लैंग्वेज के नाम पे हम लोग बातचीत किया है। इधर इस तरह की भावनाएं हैं नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि यहाँ ऐसी जाति भी है जो 10,000 से ज़्यादा नहीं है इसको बोलने वाले। अरुणाचल में परसों दिन एक आदमी आया था यहाँ, बहुत बड़ा राइटर, वो अरुणाचली है, भाई स्टेट उनका अरुणाचल है। वो IAS ऑफिसर भी था, बाद में ये लेखक बन गया, साहित्यकार बन गया, ये से दर्जी थोंग से। उनका साहित्यकार बनने का इरादा है, साहित्य चर्चा का इरादा है, इच्छा है, लेकिन कौन सी भाषा में करे, क्योंकि वो उनका अपना भाषा 100 से ज़्यादा नहीं बोलते। कि अरुणाचल में इतना ट्राइब्स है, हर ट्राइब्स का अलग अलग भाषा है, और एक ट्राइब दूसरी ट्राइब की भाषा को समझ नहीं आता। तो इसकी वजह से पिछले 40-50 सालों से
उसमें हिंदी का प्रचलन ज़्यादा रहा। हिंदी से बहुत शिक्षा लिया और अपने आप में भी जब बात करना पड़ता है ये हिंदी से बात करते हैं वो लोग। इंग्लिश का प्रचलन ज़्यादा नहीं है उसमें, आजकल हो गया। लेकिन ये से दोरजी तोंगसे के लिए एक साहित्य रचना करना हिंदी में संभव नहीं था शायद, तो उन्होंने असमीज सीखा, असमीज में किताबें लिखा, साहित्य चर्चा वो असमीज भाषा में किया है। और असमीज भाषा वो ओरनासिली तो है, लेकिन उनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला असमीज लैंग्वेज के बारे में। असमीज लैंग्वेज में साहित्य चर्चा किया है, लिखा है, इसलिए उनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है। इस तरह का नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा भाषा है। अभी सवाल है, एक समय था सारे सोते मोते भाषा को एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए और एक कॉमन लैंग्वेज बनाया जाए। ये प्रयास भी तो चल रहा था इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में भी चल रहा था। छोटे बड़े भाषा में एक सम्मिश्रण भाषा तैयार किया जाए, एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप किया जाए जिसमें बड़े बड़े लैंग्वेज बच जाता है, छोटे छोटे लैंग्वेज ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये हो नहीं पाया। अपनी भाषा, अपने परिचय को लेके जीने के इच्छाएं सब जातियों के मन में होता है, वो ही मरने नहीं दिया। अभी भी वो भाषा जिंदा है। अभी एक मॉडर्न जो नया जो चिंता है, चिंता की धारा, साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स द प्रिजर्विंग द लैंग्वेज, तो इसमें आ गया क्या है, नहीं, किसी भी भाषा को हम ख़त्म नहीं कर सकता। ये मौलिक अधिकार है, सबको अपनी भाषा लेके जीना है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए तरीका क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी काम करते हैं इसमें, और कई सारी भारत सरकार के संस्था काम करते हैं। हमारी एक मेहमान आज ऑनलाइन में रहा, गणेश एन देवी। वो गणेश एन देवी ऐसा व्यक्ति है जो अपने तरफ से ही एक लैंग्वेज डायरेक्टरेट बनाया, ये सरकारी नहीं है। और उन्होंने काम किया कि सारा भारत में कितनी भाषा है जो ख़त्म होने वाला है रिटन लैंग्वेज से। ये डायरेक्टर बना के वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और उन्होंने बोडो भाषा को भी रिकॉर्ड किया। तो उनकी दृष्टि में कोई भी भाषा मरना नहीं चाहिए, जीना चाहिए। टेक्नोलॉजी आया हुआ तो क्या हुआ है, हम टेक्नोलॉजी में भी जीना चाहिए। तो यही सिखाया हमको। ऐसे ही बोडो भाषा भी आया तो लगभग 1.5 मिलियन जैसा 15 लाख जैसा लोग बोडो भाषा को बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, असम में, और कुछ एरिया है मेघालय में भी है। और जो लिंग्विस्टिक फैमिली है त्रिपुरा का खोकबोरो को लेकर अगर चलता है तो ऐसा ही लिंग्विस्टिक फैमिली है नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है। लेकिन हम एक भाषा नहीं भूलते। लेकिन ये सवाल होता है हम लोग कैसे जिएंगे। एक पोटेंशियली एंडेंजर्ड लैंग्वेज है, इस कैटेगरी में हम रहते हैं। हम तो जी रहे हैं ना, हमारा भाषा है, साहित्य है, फिर भी हम पोटेंशियल होता है एंडेंजर का, कभी भी हम ख़त्म हो सकता है। एक रियली पोटेंशियल है, एक है तो रियली एंडेंजर, एक ख़त्म होते जा रहा है, ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, ऐसा एक स्थिति में है। और एक कैटेगरी है जो मोरिबन स्टेज में है, ये ख़त्म हो गया। इसको फिर से जीवित करने के लिए आपको कुछ फिर से काम करना पड़ता है। भाषा तो रहेगा कोई यूनिवर्सिटी में, कोई इंस्टीट्यूशन में, लेकिन बोलने वाले नहीं होगा। तो नई शिक्षा, नई परिभाषाएं हैं कि एक भाषा कभी भी नहीं मरता। जब आप एक माँ बाप अपने बच्चे को अगर सिखाते हैं तो ये भाषा कभी भी नहीं मरता। लेकिन एक भाषा कब मरता है, एक माँ बाप अगर अपने बच्चे को अपनी भाषा सिखाने से अगर दूर में रहते हैं, नहीं सिखाते हैं, तो ये भाषा मर जाते हैं। तो बोडो भाषा इसीलिए जिंदा है क्योंकि दूसरा बोले या ना बोले हम लोग बोलते हैं बोडो, और दूसरा कोई लिखे या ना लिखे हम लोग लिखते हैं। तो रिटन लैंग्वेज का कंसेप्ट होता है यही है। तो हम खुद की तरफ से क्या काम करना है ये तो भूल जाता है, काम तो नहीं करता हम लोग।
लेकिन हम लोग क्या कानूनी सुरक्षा मांगता है, संविधान की सुरक्षा मांगता है और अपना सुरक्षा भी दूसरों से मांगता रहते हैं। मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी आप अगर पालन करता है तो कोई भी भाषा मरता नहीं। तो ये साहित्य महोत्सव का जो इच्छा है या पर्पस है, हर भाषा भाषी के लोगों को जागरूक करना है, साहित्य चर्चा में लाना है, साहित्य के साथ साथ हमारे समाज व्यवस्था के बारे में बात किया जाता है। ऐसा साहित्य महोत्सव ऐसा सीमा नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि साहित्य महोत्सव में हम सिर्फ कविताओं की बात करेंगे या साहित्य की बात करेंगे। आज समाज व्यवस्था की भी बात कर सकता है, हम जस्टिस की बात कर सकता है, हम इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की बात कर सकता है, हम इसको साहित्य में लाने की काम कर सकता है हम। तो वही एक माहौल बन गया इसमें, और एक बड़ा कदम है। धीरे धीरे जाते जाते एक समय सारा भारत, इस महोत्सव अगर चलता रहा, सारा भारत इस साहित्य महोत्सव के नाम और प्रशंसा भी करना पड़ेगा। एक ना एक दिन ऐसा दिन भी आएगा, मेरा विश्वास है ऐसा। तो आने वाले साल से ये तो इंटरनेशनल महोत्सव होने वाला है, इसका चर्चा बाहर में भी चलेगा। अभी भी थाईलैंड से, म्यांमार से आया है, किसी स्टेट से आया है, और मैं आप नाम लेना चाहूँगा। पिछले साल में जो साहित्य महोत्सव हुआ, इसके बारे में जितना प्रसार मिथेश निर्मोही जी ने सारा भारत में किया है, तो ऐसा कोई भी नहीं किया। हर जगह जहाँ भी जाए, या रसिया में जाए या कहीं पे भी जाए, कोकराझार साहित्य महोत्सव की नाम उन्होंने लिया है। तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आरो जोंनि फरायसाफोर, फरायसालिफोर बे थुनलाइ मोनसे महोत्सवखौ खुंनायनि मोनसे जाहोना जाहैदों मा, जोंनि साननाय हनाय नोजोर सानस्रिखौ एसे फुवारनांगौ जों दा। जों गावनि न'आवनो सिमा जानानै थाबाय थायोबा नाथाय जोङो जौगानो रोंनाय नङा। मुलुगाव जुदि गावखौ गायसननांगौबा मुलुगखौ मिथिनांगौ जायो। स' बे साहित्य महोत्सवआव गावनिल' खोथा बुंनो थाखाय फैनो नाङा। बे साहित्य महोत्सवआव जों मालायखौ मिथिनो फैनांगौ। मालाया जोंखौ अट'मेटिकेलि मिथिलांगोन। जोंनि लिरनायनि स्टेन्डार्डफ्रा बारायलांनांगौ। दा हमनानै लादो, हारि अनसायनायनि खन्थाइ लिरोबा जों गावनि हारिखौ मोजां मोननायनि थाखाय जि खन्थाइ लिरो, बेवहाय आय' बर' बिमा होनथारनांगौ बाथ्रा गैया। बेवहाय आयै बर' हारि होनबाल'नो हारि अननाय जाया, मोनसे इउनिभार्सेल कन्टेन्ट्स थायो माखासे। बेफोर लेंगुवेजखौ बाहायनानैबो जोङो हारि अनसायनायखौ दिन्थिनो हायो। दा ओंखायनो आङो बे साहित्य महोत्सवनिफ्राय रंजा बाजाजों लोगोसे एसे माने सोलोंनांगौखौ सोलोंलांनो थाखायबो आङो खावलायबाय। মই ইয়াতে আৰু এটা কবিতা ৰচনা কৰিছিলোঁ। এটা কবিতাৰ সাহিত্যৰ মহোৎসৱ যেতিয়া অসমীয়াত এটা ৰচনা কৰিছিলোঁ, সেইটো পঢ়ি পেলাই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। असमीज में एक कविता रचना किया था, इसमें असमीज में पढ़ के सुनाता हूँ मैं। कवितार नाम विभिन्न समय। অতীতৰ কথা শুনিলোঁ বহুত, স্মৃতিৰ সৌধক অলংকৃত কৰা অতীতৰ সেই মুকুতাবোৰে সময়ৰ স্ৰোতত খহি গৈ জিলিকি নুঠে আজি। যেনে সূৰ্যৰ পোহৰত হেৰাই যোৱা দুবৰি পাতৰ নিয়ৰবোৰ। আজি ভাবিছোঁ সেইবাবেই নকৰোঁ এটা আৰু নতুন অতীতৰ ৰোমন্থন। জৰাজীৰ্ণ পূজাতলীক ন ৰূপ দি ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি যোৱাৰ মাদেই দাবাৰেৰীৰ স্বপ্নক কৰি দিছিল চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ এক উচ্ছৃংখল সময়ে। পংগু শৰীৰক লৈ মানৱতাৰ অবিৰত সংগ্ৰাম চলাই যোৱাৰ ৰহমত কাইৰ ইচ্ছাক এক বিষাদ ভৰা সময়ৰ প্ৰকোপে প্ৰহাৰ কৰি বিধ্বস্ত কৰি দিছিল। প্ৰেমত প্ৰতাৰিত ৰুক্মী বায়ৰ হৃদয়ে প্ৰেমল সফল গাথা ৰচনা কৰাৰ এক বিৰল প্ৰয়াসক আহত কৰি দিছিল অন্য এক কঠোৰ সময়ে। কৰাঙৰ এটি দুপৰীয়াত নিস্তেজ কণ্ঠেৰে মাতৃক আহ্বান কৰা নিতুৰুৱা শিশুক উঠাই লৈ মহান ব্যক্তিৰ নাম দিয়াৰ মতিৰাম পণ্ডিতৰ সংকল্পক তাচিল্য কৰা
সেই মুহূৰ্তৰ বিষয়েও আমি সকলোৱে জানে। মতিৰাম পণ্ডিতে চিঞৰি চিঞৰি নিজৰ সংকল্পক দোহাৰি থকা মুহূৰ্তটো বিদ্ৰূপ কৰা সেই সভ্যতাকো আমাৰ সময়ে জন্ম দিছিল। বিভিন্ন সময়ৰ কথা শুনিছোঁ, বিপন্ন সময়ৰ কথা শুনিছোঁ, সুখ আনন্দৰ আৰু সোণালী অতীতৰ বিৱৰণৰো বহুতৰ মুখেৰে কোৱা হ'ল। কিন্তু ভিন্ন সময়ৰ ভিন্ন কথা আজিও সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিলোঁ। সঠিক সময়ৰ বিৱৰণ কেতিয়া, কোনে আৰু কেনেকৈ দিলে। আমি এইটোও ক'ব নোৱাৰিলোঁ বিভিন্ন সময়ৰ অনুভূতিবোৰে ক'ৰবাত ৰচিত হৈছেনে নাই, আৰু যে কিমান কথা ফটুৰাবোৰে কৈ যায় এইবোৰক কোনে ক'ব পাৰিব, যিবোৰক আমি কাহানিও শুনা নাই। তো बर'फ्रा बांसिन गासिबो बर' खन्थाइखौनो फरायजोब्बायबा क'क्राझारावखाय बर'फ्रा खालि बर' खन्थाइखौल' फरायनांगौ होननानै आं सानाखिसैखाय सासे बर' मानसिया असमिया खन्थाइ फरायबाय होननानै फरायनोसै होननानै आं साननाय जादों, फरायनाय जादों। बेनि बर'निबो ट्रेन्सलेसन दङ। बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहाय फोजोबबाय। धन्यबाद। Many thanks to our sir. Now may I please invite our Honorable CEM of BTR, Sri Jyot Pramod Boro. Please, sir. दिनैनि बे सेकेन्ड लिड फेस्टिभेलनि जोबथा हाबाफारि वैलिडिक्टरी सेशन बेखौ सामलायनाय चेयरपर्सन डॉक्टर अनिल बोरो जी, हमारे बीच में उपस्थित यूजी ब्रह्मा जी, असम के कैबिनेट मिनिस्टर, अब्दुल अलीम जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारे बीच में ये 3 दिन का जो फेस्टिवल है इसको और भी सक्सेस करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मिठेश निर्मोही जी, साहित्य अकादमी अवार्डी पोइट राइटर, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच उपस्थित EM रेवरेवा नार्जारी जी, बडोलैंड यूनिवर्सिटी की रजिस्टर्ड डॉक्टर शुभम बसुमतारी जी, UN एकेडमी के डायरेक्टर कृष्ण गोपाल बसुमतारी जी, यंग सिंगर बेदान जी, यहाँ उपस्थित ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की चेयरपर्सन, कन्वेनर और अदर मेंबर्स, भारत के अलग अलग राज्यों से ये 3 दिन के प्रोग्राम में आए हुए हमारे साहित्यकारों, बडोलैंड के साहित्यकार, युवा, महिला उपस्थित सभी साहित्यकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशली आज के ये प्रोग्राम को सफल करने के लिए आए हुए अलग अलग कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं फिर से नए साल की शुभकामना आप लोग को देता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये सेकेंड जो लीड फेस्टिवल है इसको भी सफल करने में हर तरफ से आपने जो कोशिश किए हैं, मदद किए हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके हमारा कोकराझार के पत्रकारों को भी मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लगा। मैं हर प्रोग्राम में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन हर प्रोग्राम का रिपोर्ट मैं ले रहा हूँ। कभी कभी सोशल मीडिया में मैं देख भी रहा हूँ, मोबाइल में। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ इस साल, तो मैं बहुत सबको धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले साल में इससे और
बेहतर कर सके, इसके लिए आप सबसे हम लोग मदद चाहते हैं। हमारे मंत्री यूजी ब्रह्मा जी ने बताई कि सुधीर सक्सेना जी, निर्मोही जी, लास्ट ईयर पहले हम लोग का जो फर्स्ट सेशन था, इसमें आके हम लोग को इतना सपोर्ट किया कि हम लोग जो डरे हुए थे, वो जो डर है इसको दूर करने में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। लास्ट ईयर हमारा पहले इनिशिएटिव था, कोविड भी हो रहा था, तो हम लोग सब डरे हुए थे ये प्रोग्राम कितना अच्छा से कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छा हुआ और इस साल और भी अच्छा हुआ। इसलिए मुझे मैं बहुत खुश हूँ दिल से। हम लोग एक बहुत उम्मीद लेके ये प्रोग्राम का आयोजन किया था और वो उम्मीद आज एक सकारात्मक रूप में दिखाई दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि बोडोलैंड में रहने वाले जो 35 लाख पॉपुलेशन है, इनको भी दुनिया में हर कोने में रहने वाले लोगों की जैसा एक अच्छा सुरक्षित जीवन मिले, शांति मिले, अमन मिले और हर तरह की जो जीवन का लड़ाई है इसमें सफल होने का एक अच्छा जो स्थिति है, एक परिस्थिति है, यहाँ भी मिले। और इसके लिए एक माहौल बनाने के लिए, एक माहौल पैदा करने के लिए ये कोशिश किए गए कि भारत के अलग अलग और दुनिया की भी कहीं से भी हमारे इंटेलेक्चुअल जो है, राइटर जो है, पोइट जो है, इन लोग को बुला के कोकराझार में एक माहौल का तैयार किया जाए। जो लोग डरे डरे से रहते थे उनको भी एक जो सुरक्षित एक महसूस हो, उन लोग को भी साहस मिले और आगे बढ़ने का एक जो है जो एनकरेजमेंट इनको भी मिले। तो इसीलिए ये कोशिश किया गया है। अभी 2 साल के बाद हम लोग को यकीन हो गया है आने वाले समय में इनको और थोड़ा सा अलग लेवल पे हम लोग कर सकते हैं। हमारे कोकराझार के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब के प्रोफेसर लोग, बहुत सारे टीचर लोग, स्टूडेंट लोग इस प्रोग्राम को सफल करने में वो लोग बहुत योगदान दिया, कोशिश किया, सपोर्ट किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। समाज में परिवर्तन लाने के लिए वर्तमान जो शिक्षा स्कूल कॉलेज में हमें मिल रहे हैं, उस शिक्षा से हमारे जो उम्मीद है ये पूरा नहीं हो रहे हैं। स्टूडेंट्स जो बच्चे तो स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, डिग्री भी मिल जाते हैं, उसके बाद जो समाज हम लोग को चाहिए, जिस समाज का हम लोग एक ज़रूरत रखता है, हम लोग सोचते हैं कि ऐसा एक समाज होना चाहिए, ऐसा समाज बनाने में हम कभी कभी असफल होते हैं। इसीलिए एक अच्छा समाज बनाने के लिए, एक पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए हम लोग को अलग अलग जो है एक्टिविटी, अलग अलग काम, अलग अलग विषय पे हम लोग को चर्चा करना होगा। और वैसे ही ये जो फेस्टिवल है, लिटरेरी फेस्टिवल, क्योंकि हम लोग जानते हैं समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए या तो ड्रामा, या तो म्यूज़िक, या तो सॉन्ग, या तो लिटरेचर, ऐसे कुछ जो सब्जेक्ट्स है, इनके ज़रिए समाज में परिवर्तन लाना आसान होता है। हम लोग भाषण दे के, संवाद करके एक दूसरे से जितना इम्पैक्ट हम लोग ला सकते हैं, इससे ज़्यादा समाज में परिवर्तन या इम्पैक्ट ला सकते हैं ये लिटरेचर और कल्चर के ज़रिए। तो इसीलिए बहुत सालों से कोकराझार में, बोडोलैंड में अच्छा कल्चरल प्रोग्राम हो नहीं रहा था, ऐसा एक लिटरेचर प्रोग्राम हो नहीं रहा था। तो ये 2 साल में ये प्रोग्राम करके हम लोग को जो बेनिफिट मिला है, जो फायदा हम लोग को मिला है, ये अनकम्पेरेबल है। तो इसीलिए ये आगे आने वाले समय में, जैसे कि यूजी ब्रह्मा जी ने बोला, ये पूरा नेशन वाइड एक चर्चा में आए और एक अच्छा प्रोग्राम हो, इसके हर कोशिश हम लोग करते रहेंगे।
मैं सबको धन्यवाद देता हूँ बाहागो लागिरिफोरखौ आं बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय जोंहा जाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों जोबोद गोसो गोरबोदों बिथांमोना बेसेबा दिननिफ्राय बेसेबा साननिफ्राय खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै बेखौ जाफुंसार महर होनो हाबाय बे बोसोरनै थुनलाइनि बे जि फोरबो बे खुंनाया जाफुंसार महर मोननाय लोगो लोगोनो बड'लेण्डनि फारसे रायजो राजाफोरनि साननाया जथेस्थ सोलायसिगोन बयबो दिनै बुजिनो हागोन जे बड'लेण्डआव हिंसाल' जाया बेवहाय मोजां मोजां खामानिबो जायो बेवहाय माखासे सोरजिलु खामानिबो जायो आरो सारा भारतबर्षनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि माखासे लिरगिरि थुनलाइगिरि खन्थाइगिरि सल'मागिरि बिथांमोनखौ लिंनानै जोंनि हालामाव जोंनि ओनसोलाव लाबोनानै जोंनि फारसे बिथांमोननि जि साननाय बेखौ मोनसे दाजाबथायारि बिथिङाव लाबोनो थाखाय मोनसे नाजानाय जादों आरो बिथांमोना जाहाथे मोनसे खौरां लानानै थाङो जे बड'लेण्डआ हिंसानि ओनसोल नंला बियो सोलायबाय बेवहाय गोजोन फैबाय आरो बियो गुबुन ओनसोल बायदि हादोरनि आरो मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगाफोर बायदि बेबो मोजाङै जौगानो लुबैयो बेवहाय थानाय सुबुंफ्राबो अराय सम दावगालांनो लुबैयो आरो मुलुगनि मानसिफोरजों आगानजों आगान सुरफानो लुबैयो बेबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोनाबो जाहाथे मिथिलाङो आरो बिनि उनावनो बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो हाबाफारि होलांदों बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोंनि जाखांबोनाय फरायसाफोर लाइमोनफोर जोंनि माखासे प्रफेसारफोर गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबा मावनाय जोंनि माहारिनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा खौसे जानानै जों दावगालांनांगोन मोनसे समाव जोङो गोबां नेगेटिभ खोथाफोरखौ रायलायबाय गावजों गावनो गाज्रि सानलायबाय दिनै बेवहाय फरायसाफोर फैदों बेवहाय जोंहा माखासे लाइमोनफोर फैदों लिरगिरिफोर फैदों माखासे नाथाय गोबां गोरों गोरा सेक्सननि सुबुंफ्रा जेरैबायदि बाहागो लानांगौ दिनैबो बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोना बिनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे जोंनि हारिनि जौगानायनि जि दिशा जि डाइरेक्शन बेखौ लानानै गोबाङानो दाबो सिरियास नङा बर' हारिनि साफ्रोमबो गोरों गोराफ्रा सानसुमैफ्रा जुदि खौसे जानो हायोबा सिरियासलि जों जुदि हारिनि एजेन्डाखौ लानो हायोब्ला बर' हारियाव मोनसे मुंदांखा हारि जानो हागोन बेखौ आं अराय सम फोथायो दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना फैयाखै बिथांमोनखौबो गाज्रि मोनाखै इयुननि समाव जाहाथे गावबा गावनि लेभेलावबो माखासे क्रिएटिभ खामानिफोरखौ बयबो मावो बेखौनो आं खावलायगोन आरो नैबे जि फोरबो बियो बोसोरफ्रामबो जागोन बेवहाय जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो हांख्रायनाङा जासे बयबो बाहागो लाफैयो बेखौनो आं बयनिसिमबो खावलायो आरो फेब्रुवारि दानाव इन्टारनेशनेल नलेज फेस्ट क'क्राझाराव जानो थांगासिनो दङ बेवहाय मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोरनि आरो भारतबर्षनि सिगां सिरिनि माखासे इउनिभार्सिटिसफोरनि प्रफेसारफोर स्कलारफोरा फैनानै गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सानथामनि हाबाफारि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ गुबै लानानै बे क'क्राझाराव बियो सोलिगोन दा बेवहाय जि गियाननि जि नलेजनि बिनि सायाव जोंनि जि साननाय हनाय बेखौ रोखा खालामनो थाखाय जोंबो जे मोनसे मुलुगनि जौगासार थाखोआव थांनो लुबैयो मुलुगनि गासैबो गियानफोरखौ नलेजफोरखौ जे जोंबो मोनफुंनो लुबैयो आरो जोंहाबो मोननो हानायनि मोन्थाय दङ बे बाथ्राफोरखौ जोङो बेवहाय सरसा खालामगोन दा बेवहायबो नोंथांमोना बयबो बाहागो लागोन आं बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय जोबथारनायाव बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय मैं उपस्थित हमारे सभी मेहमानों को और जो हमारे ये 3 दिन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट की तरफ से हमारे यहाँ उपस्थित हुए दूर दूर से आके मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और नया साल में सबका शुभकामना ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद देके मैं यही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ धन्यवाद गजनथों Thank you, sir, for your valuable valedictory speech. Now, I would like to invite a very, very special guest who has come amidst us to give us his blessings. He is none other than our most honored Professor Abdul Ali.
He has come here from Aligarh Muslim University, and he has a special announcement before his delivery. I would like to request Bodoland Cultural Center from Ramphulville. They will be presenting us their beautiful Baguramba dance after sir's speech. Please, sir. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल बोरो जी, सम्मानीय आसाम सरकार के मंत्री यूजी ब्रह्मा जी, प्रसिद्ध साहित्यकार निर्मोही जी, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, बीटीआर गवर्नमेंट के सम्मानित सदस्य, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यगण, भारतवर्ष से आए साहित्यकार, रचनाकार और इस सभागार में उपस्थित प्रेस के साथियों और उपस्थित सम्मानित जन, सबसे पहले कोकराझार सेकंड कोकराझार लिटरेरी फेस्टिवल 2023 के आयोजन के लिए मैं आयोजन कमेटी को हार्दिक बधाई देता हूं। बधाई इसलिए कि बहुत सारे कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है, मगर इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे कुछ सीखने का भी मौका मिला है। मौका इसलिए कि जो इसका शीर्षक रखा गया था, लिटरेचर फॉर पीस एंड हार्मनी, इस शीर्षक में जो मैंने यहाँ 3 दिन का और कल से जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर उपस्थित होकर, और आज जो पीस का संदेश लिटरेचर देता है, चाहे जो भी भाषा का लिटरेचर हो, चाहे बोडो का हो, आसामी का हो, हिंदी का हो, उर्दू का हो, मेरा एक भावनात्मक लगाव कहिए इस बोडो भाषा से रहा है। वो इस तरह से, जब बोडो भाषा 8 शेड्यूल में लाने का आंदोलन चल रहा था, तो जब हमारे माननीय यूजी ब्रह्मा जी राज्यसभा में एमपी थे और बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने दिल्ली में आयोजित किए थे प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी के साथ, मैं भी इनके साथ गले से गला मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उस जितने भी आंदोलन रहे, जितने भी कार्यक्रम रहे बोडो को लेकर, 8 शेड्यूल को लेकर, मैं हर कार्यक्रम में दिल्ली में इनके साथ रहा। आज बड़ी तमन्ना थी बोडोलैंड आने की। अभी 16 को जब इन्होंने कार्यक्रम राजघाट पर सन्निधि पर आयोजित किया था और जिसमें बोडो शोध केंद्र की स्थापना की, आप यकीन मानिए उस दिन मेरा हर्ष का कोई मतलब कहना चाहिए जगह नहीं थी कि मैं किस तरह से बयान करूं। जब यूजी ने उस ज़माने में जो प्रयास किया था वो आज इस तरह से फलीभूत हुआ कि दिल्ली में राजघाट पर बोडो शोध केंद्र की स्थापना हुई 16 नवंबर को, और इतना बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी भी मौजूद थे, यूजी भी मौजूद थे, प्रमोद बोरो जी भी मौजूद थे और बीटीआर के बहुत सारे सम्मानित सदस्य भी मौजूद थे। पूरा हॉल कहिए, पूरा कैंपस भरा हुआ था गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा का, जो एक आपने लिटरेरी फेस्टिवल के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया है। मुझे लगता है ये भारत के लिए एक सबक है, पूरे भारत के लिए, कि जहाँ भी आयोजन होते हैं, हमने बड़े बड़े आयोजन देखे हैं, जयपुर फेस्टिवल को देखा है, भोपाल को देखा है, वो एक भाषा को लेकर या कुछ लोगों को लेकर अपनी व्यक्तित्व को निखारने के लिए, या कुछ जमावाड़ा होता है जिसमें अनिल बोरो जी भी जा चुके हैं, सभी लोग उसमें जा चुके हैं। मगर इस तरह का आयोजन जिसमें जनता की भागीदारी हो और जनता भी उसमें पूरी तरह से सम्मिलित हो, मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन पूरे भारत में हर राज्य में होने चाहिए। और विशेषकर जिस तरह से इन आयोजन समिति ने पूरे भारत से बुलाया है, आप यकीन मानिए मैं 14 घंटे का सफ़र तय करके, जो एक थकान होनी चाहिए थी, अलीगढ़ से दिल्ली, पूरा कोहरे का माहौल, बड़ा खतरा, घर वाले मना कर रहे थे कि इस कोहरे में आप कहाँ जा रहे हैं,
निर्मोही जी मौजूद हैं कि उत्तर भारत में इस वक्त पूरा कोहरा छाया हुआ है। सुबह 5 बजे चलकर जब मैं 10 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने कहा कि खैरियत से पहुंच गए। मैंने कहा ये यूजी ब्रह्मा का प्रेम है जो मुझे यहाँ कोकराझार लाया है, क्योंकि मेरा मन था बहुत दिन से यहाँ आने का। मगर जब 16 नवंबर को कार्यक्रम हुआ था कि बोले हम लिटरेरी फेस्टिवल करेंगे अलीम साहब, तो मैंने कहा मैं स्वयं हाजिर हूँगा, आप बुलाएं ना बुलाएं। मैंने रमेश भारद्वाज जी से कहा था कि मैं कोकराझार जाऊँगा, जो एक पैगाम संदेश आप देश को देना चाहते हैं, पूरे भारत को देना चाहते हैं कि जो लिटरेचर के ज़रिए से पीस एंड हारमनी, शांति और सद्भाव, समरसता का मैंने मिसाल यहाँ देखी कि किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक पूरा संदेश दे रहे हैं पूरे भारत को। ये आपका ये संदेश है कि किस तरह से लिटरेरी फेस्टिवल को मनाया जाता है और किस तरह से आयोजन किया जाता है। तो मेरा तो बल्कि अब आइंदा कोई भी प्रोग्राम होगा मैं तो इसकी मिसाल दूंगा कि जो कोकराझार में हुआ है लिटरेरी फेस्टिवल, और इन्होंने जिसे उनको बुलाया है चेन्नई से भारद्वाज जी को, कितना सुंदर गायन किया है। आज के तनाव भरे वातावरण में जो बाज़ारवाद है, जो पूंजीवाद है, हर आदमी तनाव में है। क्षमा कीजिएगा, मैं भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। अब प्रोफेसर के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी अभी मुझे मिली है, मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर हो गया। पूरा तनाव का मतलब काम के साथ साथ पूरा तनाव, चलते में तनाव, आते में तनाव। मगर एक लिटरेचर जो है आपको शांति और सद्भाव वो कैसे देता है, वो आज यहाँ आकर मुझे मिला कि 3 दिन मेरी मन को शांति मिली है इस लिटरेचर फीस्ट में आने के बाद। जिस तरह से मैंने गायन सुना, जिस तरह से मैंने सुबह जो लेक्चर सुने थे लोगों की, जो जितनी भी भाषाएं हैं जो मर रही हैं, मैं आपको बताऊं केंद्रीय हिंदी संस्थान ने ऐसी 52 भाषाओं के शोध शब्दकोश तैयार किए हैं जो लगभग समाप्ति की ओर हैं। उनका बाकायदा रिकॉर्ड बनाया है। वो यहाँ की भी जो 250 लोग बोलते हैं उस भाषा का भी शब्दकोश तैयार किया है, और मैं भी उसमें एक इन्वॉल्व था सिंधी वाले शब्दकोश में। तो मेरा तो बहुत सारी बातें करने को दिल है, जो बोडो को लेकर या अन्य भाषाओं को लेकर, असमिया को लेकर या नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी भाषाएं, कोई भी भाषा सभी शांति का संदेश देती हैं। और विशेषकर इस तनाव भरे वातावरण में जो एक मनोविज्ञान है, आप देख लीजिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, जितने कार्यक्रम हुए, जो भजन गाया गया, कबीर को सुना गया, जबकि कबीर हिंदी और सूरदास ब्रज के कवि हैं, मगर जो मन को शांति मिली है हम सभी को, यकीन मानिए सबके हाथ जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच थे। भाई भारद्वाज जी ने जो एक गायन किया, तो इसका अर्थ ये है कि लिटरेचर अगर आप गौर से और समय दें इस तनावपूर्ण वातावरण में, इस बाजारवाद और पूंजीवाद, आतंकवाद, ये जो पूरा का पूरा, और राजनीति का जो एक पूरा पर्दा है ना, पूरा का पूरा जो एक राजनीति संदेश कहते हैं, तो मुझे यहाँ गांधी याद आते हैं। गांधी को मैं याद करके समाप्त करूँगा। गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने, आप उनके वचनों को पढ़ लीजिए। गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा में मैं रमेश भारद्वाज जी के साथ काम करता हूँ। तो गांधी जी का यही सपना था कि भारत की सभी भाषाओं को जोड़ा जाए, जो आज आपने किया है। मुझे लगता है आपने गांधी के चश्मे को सिर्फ लगाया नहीं है, उसके विजन को भी लिया है कि गांधी का सपना नहीं बल्कि विचार था कि भारत की सभी भाषाओं को लिया जाए और एक भाषा विकसित की जाए जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के शब्द हों। देखिए, उसमें नाम नहीं लिया था उन्होंने, संपर्क भाषा नाम दिया था। आप उसे जो भी भाषा कह लें, सुबह जो कहा था किसी ने कि रमेश भारद्वाज जी ने जो कहा था, कहीं भी गांधी जी गुजरात भाषी थे और उन्होंने अपने बेटे को हिंदी सिखाने के लिए नमूने के तौर पर दक्षिण हिंदी प्रचार सभा भेजा। मुझे लगता है जो गांधी की नीति को आप लोग ही सही तरह से, पूरी तरह से, ईमानदारी से उसका पालन करते हैं कि यूजी ब्रह्मा ने इतनी सुंदर हिंदी बोली, प्रमोद बोरो ने इतनी सुंदर हिंदी बोली, और जो हमारी आयोजक हैं प्रमिला ब्रह्मा, और भी जितने लोग हैं, मैं जितने लोगों से भी मिला, मुझे लगता ही नहीं कि मैं उत्तर भारत में नहीं हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं बल्कि मैं उत्तर भारत में ही हूँ। ये आपका विशाल हृदय है जो आप अपनी भाषा के साथ, अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी को भी उसी तरह से प्रयोग में लाते हैं जो एक भारत की संपर्क भाषा हो सकती है। मैं गांधी वाली भाषा का हिमायती हूँ, हिंदुस्तानी का, हिंदी का नहीं बल्कि हिंदुस्तानी का, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के शब्द हों, जिससे शांति का संदेश जाए। और इस फेस्टिवल ने जो संदेश दिया है, मैं तो जहाँ भी जाऊँगा इत्तेफाक से पूरे भारत में जाने का अवसर मिलता है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होने के नाते, या एक दोस्तों की मेहरबानी कहिए, जैसे यहाँ यूजी मौजूद हैं। मैंने बताया कि उस ज़माने का जब ये मंत्री हुए तो मैंने मैसेज भेजा, मैंने कहा सर आप मंत्री हुए हैं, आपको हार्दिक बधाई।
तो यूजी ने, माननीय मंत्री, अब यूजी नहीं कहूँगा, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अलीम साहब मुझे वो यादें याद हैं जब आपने बोर्डो में हमारे साथ मिलकर काम किया था, आपकी वही। फिर जब मैंने फ़ोन किया बोले आपकी आवाज़ भी नहीं बदली है। तो हमने कहा कि हम उस आंदोलन के साथ रहें जो एक ऐसा आंदोलन जो एक ट्राइबल लैंग्वेज एक नमूना थी, और आपने त्याग करके दिखा दिया पूरे भारत को कि एक 30 लाख लोगों की भाषा भी 8 शेड्यूल में आ सकती है। भोजपुरी के 10 करोड़ लोग बोलते हैं, भोजपुरी यहाँ से और मॉरिशस तक मौजूद है। आज तक भोजपुरी 8 शेड्यूल में नहीं आ पाई है, माफ़ कीजिएगा। मगर आपका त्याग, आपका योगदान कि ये रहा, त्याग का योगदान ये रहा कि 8 शेड्यूल में, उसमें मुझे लगता है कि यूजी का बहुत बड़ा, यूजी ब्रह्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आप सभी का, पूरे बोडोलैंड का। तो मैं तो बीटीआर गवर्नमेंट के चीफ सीएम प्रमोद बोरो जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है। और मैं वायदा करता हूं कि आप बुलाएं ना बुलाएं यूजी, अगले अंतर्राष्ट्रीय उसमें निमंत्रण नहीं देंगे तो मैं स्वयं आ जाऊंगा अपने टिकट लेकर इस आयोजन में। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ सीखने का मौका मिला है, एक सद्भाव का जो आपने एक मिसाल पेश की है। तो मैं भी उस रथ में, जैसे आपके बोडो वाले आंदोलन में साथ रहा हूँ, एक भारत को हम संदेश देना चाहते हैं कोकराझार से कि इस तरह के आयोजन होने चाहिए जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के रचनाकार, साहित्यकार, निर्मोही जी जैसे और भी बहुत सारे साहित्यकार जो सुबह थे वो यहाँ पर सम्मिलित हों और एक पूरे भारत को संदेश दें सद्भाव का, समरसता का और शांति का। यही लिटरेचर का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका और विशेषकर आयोजन समिति का हार्दिक धन्यवाद, जो आपने मुझे इतने अच्छे सुंदर उत्सव को देखने का मौका दिया और आप कुछ अपने मन की बात कहने का अवसर दिया। वैसे एज ए प्रोफेसर मैंने एक ये राइटअप लिखा था, इस पर मैंने अभी यूजी ब्रह्मा को दिखाया है कि मैंने लिखा था, मगर ये मंच यहाँ पढ़ने के लिए नहीं था, ये समापन समारोह है। मैं अगले किसी पत्रिका में और इसको मिलाकर जो यहाँ के जो मेरा अनुभव है किसी बड़ी पत्रिका में छपवाऊँगा कि कहाँ पर कोकराझार का संस्मरण। मैं आइंदा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ बीटीआर गवर्नमेंट को और यहाँ के बोडोलैंड के लोगों को, कोकराझार के, कि भविष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हो वो भी इसी तरह से सफल हो जैसे ये आज सफल हुआ है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आपके उत्साह, आपका सीख और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे बोडोलैंड वासियों के सर पर रहे, ये हमारे आपसे विनम्र निवेदन है। थैंक यू सो मच फॉर योर सच मोटिवेशनल स्पीच फॉर आस। मानगोनां रायजो राजाफोर, जोंना बारा गोबाव सम लानाय नंला, जोङो आलासि बिथांमोनहा सानैसोल'सै आरो बेनि आवगोल जोङो मोसानाय दिन्थिफुंनो नागिरदों बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलनिफ्राय, आरो बिथांमोनखौ आङो गावसोरनि समायना रमायना बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। Honorable guests, now we are going to present before you the beautiful Bagurumba dance of this tribe, of Bodo tribe. Thank you so much, sir. See. Bagurumba,
जोबोद गोजोननाय थाबाय बड'फा कालचारेल सेन्टार रामफलबिलनि मोसाखावरि बिथांमोननिसिम आरो दामग्रा देग्रा बिथांमोननिसिमबो रायजो राजाखौ गुरैयै खावलायदों जाहाथे आब्रुथिखौ लाखिनानै दा गसंथों आरो बारा गोबाव जानाय नंला जोंनि मिटिङा नाउ मे आई प्लीज इनवाइट again one of our special guests, very special to the people of Bodoland. आपको हम यहाँ पे invite करना चाहते हैं. Now may I please invite Sri Mithish Nirmohi, who is a Sahitya Academy awardee, and as UG sir has always called him, he is a very special messenger to the people of Bodoland. Sir, please. आदरणीय प्रोफेसर अनिल बोड़ो साहब, मेरे परम मित्र यूजी ब्रह्मा जी, अब्दुल अलीम साहब, प्रमोद बोड़ो साहब जो अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, रेवा नाथ हरि जी, प्रतिभा जी ब्रह्म और मंचस्थ समस्त अतिथिगण, मित्रों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रमोद बोड़ा जी और यूजी ब्रह्मा जी, अनिल बोड़ो जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं इस शानदार आयोजन कराने के लिए। मैंने महसूस किया है यहाँ आने के बाद में जिस तरह से प्रथम आयोजन हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय कविता महोत्सव के नाम से जाना गया पूरे विश्व में, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ। और मैं अभी भी प्रेस के बंधुओं से अनुरोध करूँगा कि इस आयोजन को भी आप उतना ही महत्व दें। ये स्थानीय आयोजन नहीं है, भारत का ही नहीं है, इसमें 4-5 अन्य देशों के साहित्यकार भी हमारे बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे और अपनी रचनाओं से सराबोर कर रहे थे। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और इस सम्मेलन में जितने भी साहित्यकार बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी है, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और बीटीआर सरकार का अभिनंदन इसके लिए भी कि मैंने पिछला जो आयोजन हुआ था तो मैंने इनसे अनुरोध किया था कि लेखिकाओं पर केंद्रित एक कार्यक्रम रखा जाए, युवाओं पर केंद्रित एक कार्यक्रम रखा जाए, कविता के अतिरिक्त कहानी और अन्य विधाओं पर भी ये कार्यक्रम आयोजित हो तो बहुत बड़ी उपलब्धिजनक रहेगा यह समारोह। और उन्होंने ऐसा ही किया। इस आयोजन के बाद मेरी और भी ब्रह्मा जी, इस आयोजन के बाद मेरी और भी इच्छा कुछ है, वो मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि इसमें उत्तर आधुनिकता के जितने भी विमर्श है, चाहे स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक सत्र उन पर भी रखा जाना चाहिए और कलाओं को प्रोत्साहन मिले। फिल्म के भी बहुत सारे यहाँ जानकार होंगे, उन्हें भी प्रोत्साहन मिले, यहाँ के स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिले, फिल्म बनाने की विधियाँ सीखे। तो एक फिल्म पर भी एक इस तरह का एक संगोष्ठी होगी तो अच्छा रहेगा। मित्रों, भाषाओं और उपभाषाओं की जहाँ तक बात है, मैं इसका पक्षधर हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अंग्रेजी को महत्व दिया जाए, भारतीय स्तर पर हिंदी को महत्व दिया जाए और जो हमारे प्रदेश है वहाँ की मातृभाषा को महत्व दिया जाए, तो हमारी प्रतिभाएं बहुत आगे तक पहुँचेगी
उन्हें साहित्य के संस्कार भी मिलेंगे। वो अंग्रेजी में साहित्य उपलब्ध है तो वो भी पढ़ पाएंगे, हिंदी में है तो वो भी पढ़ पाएंगे, और अपनी मातृभाषाओं में है वो भी पढ़ पाएंगे। और इतना ही नहीं, वो सारी प्रतिभाएं अनुवाद भी करने लगेगी। पूरे परस्पर जो एक इस तरह से वातावरण बनेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारी भाषाओं का अनुवाद किया है। मेरे गांव आना तुम, अनिल बेड़ो साहब की एक कविता का मैंने अनुवाद किया, राजस्थानी में किया उसका। किसी मित्र ने उसका बंगला में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद किया था, फिर मैंने राजस्थानी में किया, फिर वो वही उसी कविता का अनुवाद पंजाबी में हुआ और वो बीए में लग गई पाठ्यक्रम में। यूजी ब्रह्मा साहब की भी कविता लगी है उसमें, और आपकी भी कविता लग गई वो वहाँ पर। तो ये है अनुवाद पर भी एक सेशन होना चाहिए, अनुवाद पर भी एक सेशन होना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि मातृभाषाएं बचेगी तो साहित्य बचेगा और संस्कृति बचेगी, अन्यथा इन सब पर खतरा है। भूमंडलीकरण की जो विसंगतियां हैं, बाजारवादी विसंगतियां हमारे सामने हैं, वो व्यक्ति केंद्रित होती जा रही है। हमारा समाज बिखरता जा रहा है। उस स्थिति में ये सद्भावना विषय जो जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो बड़े प्रासंगिक हैं, क्योंकि एक संस्कारी व्यक्ति को संस्कारित करने में जो जिस तरह प्रेम और सद्भावना की जो भूमिका रहती है, उसी तरह से विभिन्न भाषाओं की भी भूमिका रहती है। विभिन्न भाषाओं की भूमिका इस तरह से रहती है कि वो अलग अलग संस्कृति से आती है, अलग अलग शब्दकोश उनके यात्राएं करते रहते हैं, शब्द यात्राएं करते रहते हैं। तो मैं अनुवाद पर विशेष ध्यान देने का आग्रह करूंगा आपका। अगले सत्र में आप अनुवाद पर भी एक सत्र रखें। और बहुत बहुत बधाई एक बार सारे साहित्यकारों की ओर से मैं बधाई देता हूं आपको। धन्यवाद। Thank you, Mitesh Nirmohi ji. Thank you for your valuable speech and for being with us for last 3 days. दायो जोंहा मोनसे हाबाफारि दङ। प्रतिमा नन्दि नार्जारी बिथाङा लिरनाय असमिया रावनि गांसे बिजाब हनर मुकुट आरो लुभिया बुरा। बे बिजाबखौ बिथाङा मानाव गेदेर मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारनि आखाइजों बेखेवहोनो हांख्रायदों। आं बिथांखौ हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायबाय। आखाइ खबदा हो रायजोफोर। गोजोन्थों इउजि ब्रह्म सारनिसिम आरो लिरगिरि प्रतिमा नन्दि नार्जारिनोबो हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। Now we have vote of thanks. Vote of thanks will be proposed by Mr. Noren Chandra Busumutari, Secretary. Sorry. Now we have Chairman's remark. I would like to request our Honorable Chairman of the Organizing Committee, Professor Anil Borosar, to deliver his speech. Khulumbai,
Namaskar. So, with this program, the 3-day event is formally concluded, going to be concluded from now on. दा जि हाबाफारि खुंफुंनाय जाबाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों सानथामनि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ थुंगेनायनि लामायाव सफैबाय। बे सानथामनि थुनलाइयारि फोरबोआ गाजा गोमजायै जोबोद जाफुंसारै जानानै थांबाय। जाफुंसारै आं बे ओंथियावनो बुंगोन थांनाय बोसोर जों 100 लैंग्वेज 100 रावनि खन्थाइगिरिफोरखौ लेंहरनानै खन्थाइयारि फोरबो खुंदोंमोन। बेयाव गाहायै खन्थाइ फरायनायजों मोसानाय मुसुरनाय फावथिना दिन्थिफुंनाय आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिबो दंमोन। नाथाय थांनाय बाराव खन्थाइयावल' फकास होनाय जादोंमोन, बांसिन खन्थाइनि सायाव। नाथाय जेब्ला जोंनि बिटिआरनि खुंगिरि बिथांमोनहा बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जेब्ला जोंखौ लेंहरनानै जेब्ला सावरायजेनो माने गिबि खेब बे सावरायनायाव जों बुंदोंमोन माने जों देग्लाय माने जायमारोब्ला जुदि जायोब्ला जिहेतु नभेम्बराव खुंनो हालिया, जों जानुवारियाव खुंगोन होननानै मोनसे डेट लाबाय। बे समाव जों बुंदोंमोन आरो देग्लाय खन्थाइल' नङा, खन्थाइजों सल' फरायनाय जानांगौ, नभेल रिडिं, बेनिफ्राय इन्टारेक्शन विथ द अथर्स पाब्लिशार्स बिदि हाबाफारि जानांगौ। बाखि कालचारेल हाबाफारियाथ' थागोन। आरो हायोब्ला जोंनि खाथि खालानि जायफोर फरेन कान्ट्रिसफोर दं, भुटान, नेपाल, बांलादेश, पाकिस्तान, ओजों बार्मा, थाइलेण्ड, बेफोरनिफ्रायबो जों आलासिफोर लेंहरनांगौ, खन्थाइगिरि लेंहरनांगौ, बिदि जों सावरायदोंमोन। माने जोंथ' दिन्थिनानैसो होनो हायो, नाथाय लेंनानै लाबोनाय बा बेनि खरसा माबा खालामनाय गासिबो जोंनि माबानि सायाव, सोरखारनि सायाव। गतिके बिदिनो जोंनि हाबाफारिया जुरिजेनदोंमोन प्राय दाननैसो सिगांनिफ्रायनो। आरो फैयै फैयै दिनै बिनि जों मोगथां महरखौ नुबाय बे सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों। आरो बेयाव देग्लाय गाजा गोमजायै आरो गेदेरसिनै अन ए लार्ज स्केल जों लादों बे बुक फेयार। मानोना थांनाय बोसोराव जों बुक फेयारखौ डिक्लेयार होआखैमोन। डिक्लेयार होआबाबो गंथाम गंब्रै स्टल फैदोंमोन। Last year, 2 or 3 book stalls were there, but this time we plan to organize a book fair along with this literary festival, and it was inaugurated on 5th of this month, and it will continue as announced till 9th or 10th of this month. So, देग्लाय जोबोद गाजा गोमजायै बे फेस्टिभेला जानानै थांबाय। आरो गोबाङानो बुंदों that क'क्राझार बे literary festival is going to be an important literary event. आरो बेखौ थारैनो जों मावफुंनो हागोन जुदिहे जों बोसोरफ्रामबो if we can continue this festival every year, आरो जों बोसोरफ्रामबो जुदि कन्टिनिउ खालामनो हायोब्ला we will improve qualitatively. क्वान्टिटियाथ' बारा नाङा, जों 100 खन्थाइगिरि लेंहरनो दरकार गैया। जों बायजोनिफ्राय जुदि बासिख्ल'नानै 12 जन 15-20 जनसो एकेबारे मुंदांखा जुदि लाबोनो हायोब्ला, आरो बाखि जोंहा लकेलफोर दङ, बायजोनि जुदि 20सो जुदि मुंदांखा जों लाबोनो हायोब्ला एसे खरसा खालामनानै, बाखि लकेलाथ' बारा जों खरसा होआबाबो फैगोन। जों ओरैबायदि मोनसे सम फैनांगोन जे जों रावनोबो थांलाय फैलायनि खरसा होआ, बयबो फैगोन, फैनानै खन्थाइ फरायगोन, हयथ' जानायखौ होगोन, थानायखौ होगोन, बिदि धरनि मोनसे सम हयथ' ओरैबायदि फैगोन, गावनो बयबो स्पन्टेनियासलि बेयाव बाहागो लाफैगोन। अब्लासो जों
जों माने साननो हागोन साननो खाबु मोनगोन that really that क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ लिटारेरि फेस्टिभेला मोनसे लिटारेरि फेस्टिभेल महरै मोनसे आंगो सिनायथि मोननो हाबाय आंगो मोनसे माबा मोननो हाबाय गतिके I am looking forward to those days बै समा फैगोन बै साना सानसे फैगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय मिजिंथिनानै बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय गाहायै बिटिआर खुंथाया बेखौ खुंनो लानायनि थाखाय बेयाव बिथांमोननि बिबानगिरिफोर दं प्रमद बर' बिथाङा गैयाब्लाबो बिबानगिरि बिथांमोन दङ आरो गुबुनफोर दङ मन्त्रि बिथां दं गतिके आं बुंनो गोनाङा बेनो जे जों बेखौ माने गाहामसिनै फैगौ समाव आरो गाहामसिनै खुंनांगोन आरो खुंनायनि गेजेरजों आं गिबियावनो जेरै बुंबाय जे जों मोनसे लिटारेचार फेस्टिभेलनि मोनसे मडेल हिसाबै जों बेखौ गायसंनो हागोन खुलुमबाय गोजोन्थों Thank you, Professor Anil Borosar, for your valuable speech and for sharing the session. Now, I would like to request Honorable Secretary of BTR, Mr. Naren Chandra Bhusamutari, to propose the vote of thanks. Honorable Chairman of today's valedictory session of the second Kokrajhar Literary Festival 2023, मंच पर विराजमान विशिष्ट writer and Sahitya Academy awardee मितेश निर्मोही जी, असम के मंत्री यूजी ब्रह्मा जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल अली जी और मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण, respected guests from our neighboring countries, the writers, authors, poets from Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Thailand, Sri Lanka, who have participated in this literary festival, and respected guests, writers, poets, authors from various states of the country, scholars, research scholars, professors, students from various universities and colleges, and respected office bearers and members from the organizing committee, respected friends from the press, media, from print and electronic. I take this privilege to extend a vote of thanks to especially the chairman who has been here for last 3 days in this literary festival, which has turned to be a confluence of language and literature, not only language and literature, but gathering of so many writers, poets, authors, scholars from many languages. Secondly, I would extend my vote of thanks to the Chief Executive Member of Border and Territorial Council, under whose leadership and guidance this literary festival could be organized very smoothly and very successfully. I would extend my vote of thanks to Honorable Minister Sri Urkhaugara Brahma, who has been a guiding figure for all the programs and in making this literary festival a grand success. I would extend my vote of thanks to Professor Abdul Ali, who has been here all the way from Aligarh Muslim University and graced this occasion, and he has addressed the gathering with his valuable speech. I would extend my vote of thanks to all the guests present on the dais, and I wholeheartedly thank all the participants, guests, authors, writers, scholars coming from Pan India, and the students from schools and colleges and universities who have been a part of this literary festival for a long 3 days. And on behalf of the Border and Territorial Council administration,
I extend my vote of thanks to all the members, delegates, participants who have come over here to make this 3 days program a grand success. Thank you very much. Thank you. Now the session is over. आं दा हारिमुवारि हान्जा बिथांमोनखौ मोसानाय दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो सिख्रि सिख्ला हान्जा बिथांमोनखौ मोसाफैनो थाखाय खावलायबाय। जोंहा दिनै गोबां हाबाफारि दङ, हारिमुवारि हाबाफारिफोर। जोंनि हारिमुवारि दालाइ आफादा बे हाबाफारिखौ दैदेनलांबाय थागोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ दिनैनि बे हारिमुवारि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। हेलो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय नैथि खेब जोंनि थुनलाइयारि बे फोरबोआ जोंहा दिनै जोंहा गेवलां मेला सेकेन्डआवनो जोब्बाय। दा नाथाय जोंहा आरो हाबाफारि दंबावो, जोंहा गेवलाङै हारिमु दिन्थिफुंनाय। ज' रायजोफोर जोंहा बाहाय जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरि, गोबां लेखा गोरों व्यक्तिफोर दङ। बिथांमोनहा लेखा गोरों, दैदेननो गोरों, लिरनो गोरों आरो रोजाबनाय मोसानायावबो गोरों बिदि सुबुंफोर दङ। स' रायजोफोर जों नायनि दाना हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन। दा बिनि सिगांनो लक्ष्मी ब्रह्म, सुइटि, सनालि बिथां साथामजोआ नोंथांमोननि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफुंगोन। आरो जोङो दा मोनायाव दा जेरैबायदि मोसागोन आरो बिनिख्रुइ साबसिन मोसाबावनायखौ दा मोनाबिलियाव मोसाबावगोन। आरो जोंहा बिनि गेजेराव जोंहा गोबां जोंनि गेजेराव देंखोगिरिफोर दङ, गोदान आरो गोजाम। जेरै बुदां बलब दं, फुंबिलि दं, हेमदेब दं, जांगिला दं, गसाइ दैमारि दं, समेस्वर दं आरो गोबां जोंनि गेजेराव देंखोगिरिफोर दं आरो गोबां मोसागिरिफोर दं। जोङो बिथांमोनखौ जोङो साफा साफायै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन। स' रायजो राजा नोंथांमोनखौ दा जेरैबायदि डिसिप्लिन आब्रुथिनि गेजेरजों जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मदद होलांबाय, थिग बिब्दिनो आरो जोंनि नैबे गेवलाङै हारिमु दिन्थिफुंनायखौबो जेन' मदद होलांबाय थायो, आं बेखौ नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय जाहैबाय। दा आङो लक्ष्मी आरो बिथांनि हान्जाफोरखौ आङो मोसानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। लक्ष्मी, सुइटि, सनालि बिथांजो साथामनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाहैबाय। स' रायजोफोर माबायदि नांदों मोसानायखौ? बरिया, मोजां नुदोंना? आं दहाय बुंखादों, दानिखौथ' आं जेबो होनथ'बावला, आरो मोजांसिन होनबावदों आं, साबसिन दंबावो होनदों आं, बेखौ दा मोसागोन। स' रायजोफोर इन्टिग्रिटि मेथाइमोन बेयो, असमिया जोंनि, नाथाय बाहाय जोंनि बर'नि देंखोबो हाबदों, दामनायनि देंखो रिमिक्सजों बेखौ मोसानाय जादों, खोब मोजां जादों अंगि भंगिया। थ' बिथां साथामा जे जोंनो मोसानानै होलांबाय, बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाहैबाय। आरो गोदान बोसोरनि बिथां साथामनो, बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिनिख्रुइ साबसिन मुंदांखासिनै मोसानानै खिथाबावनो हाथों आरो बिथांमोननि इयुन मिजिं सिमाङा मोगथां महर मोनथों। 2023 मायथाइयाव बिथांमोननि जिउ सोलेरा जेबो बेमार आजाराव गोग्लैया जासेनो मोजाङै दावगासारलांथों। न'खरफ्राव बिमा बिफा, बिदा बिनानाव, फंबाय बिसोरजों गोरोबलायनानै जिउखौ दैदेनलांनो हाथों, आं बेखौ आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबबाय आरो बिथांमोननो आङो साबायखर जासिबाय। थ' दाना जोङो रामफलबिल कालचार सेन्टारनिफ्राय मोनसे समायना रमायना मोसानाय, जोंनि बर'नि गुबै दावहारु बिनि महरखौ दिन्थिफैनो एबा दाहाल थुंग्रि बेखौ मोसाफैनो आङो बिथांमोनखौ खावलायनाय जाहैबाय।